السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن. میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے آپ کے لیے جو لے کر آئے ہیں ہم، وہ یہ ہے کہ الکوہول والا پرفیوم لگانے سے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا معاملہ ہے. جیسے کہ اکثر لوگ کہتے ہیں یار الکوہول والا جو پرفیوم ہوتا ہے وہ اس سے جو ہے نماز نہیں ہوتی ہے آپ کی، جبکہ الکوہول جو ہوتا ہے وہ الکوہول وہ پینے والا الکوہول نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے ایک کیمیکل فارم ہوتا ہے جو پرفیوم میں ڈالا جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو کا ٹاپک یہی ہے، علماء کرام سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا حقیقت ہے، کیا معاملہ ہے، یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں الیاس قادری صاحب، ان کا موقف سنتے ہیں مدنی چینل کا کہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو. عمر قادری ہے، میں 8 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں کراچی میں رہتا ہوں. پرفیوم یا باڈی اسپرے میں نماز ہو جاتی ہے؟ جواب ناصر میں. ہاں، یہ الکوہلک پرفیوم اور باڈی اسپرے جو اب آ رہے ہیں، تو ایک علماء کا ایک طبقہ جو ہے، کئی علماء ہیں جو اس کو جائز کہتے ہیں لگانا. تو جائز ہے تو نماز ہو جائے گی. تو ہم بھی انہی علماء کے فتوے پر عمل کرتے ہیں، جائز سمجھتے ہیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوستو، آپ نے الیاس قادری صاحب کو موقف سننے نے کہا ہم جو کچھ جو علماء کرام اس کو جائز سمجھتے ہیں ان میں ہم شامل ہیں. ہم بھی جائز سمجھتے ہیں کہ آپ الکوہول والا پرفیوم یوز کر سکتے ہیں، اس میں نماز ہو جاتی ہے. تو چلیے مفتی طارق موسیٰ صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، ان کا موقف سنتے ہیں. اچھی استعمال کیا کریں، ذرا مہنگی استعمال کیا کریں. اچھی کا مطلب تھوڑی سی مہنگی ہی اچھی ہوتی ہیں، سستی والی خوشبوئیں اچھی نہیں ہوتی. آج کل جو خوشبوئیں استعمال ہو رہی ہیں وہ دماغ پہ چڑھتی ہیں، عجیب سی چیزیں لوگ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں اور پھر زبردستی ٹھوس بھی دیتے ہیں، لگا بھی دیتے ہیں. میں آپ کو ایک فارمولہ بتاتا ہوں خوشبو کے بارے میں. الکوہل والی خوشبو کا استعمال بھی جائز ہے، لیکن آپ الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کیا کریں. الکوہل والی خوشبو سے طبیعت میں نشاط پیدا ہونے کے بجائے طبیعت پہ بوجھ بنتی ہے، کیونکہ الکوہل دماغ پہ چڑھتا ہے. جب آپ الکوہلک خوشبو استعمال کریں گے تو دماغ معطر نہیں ہوگا. وقتی طور پر مزہ آتا ہے، خوشبو محسوس ہوتی ہے، لیکن سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، زکام بھی ہو سکتا ہے، اور طبیعت پہ بوجھ پیدا ہوتا ہے. تو جو نان الکوہلک خوشبوئیں ہیں جو خاص طور پہ عرب کنٹریز میں استعمال ہوتی ہیں، وہ خوشبوؤں کا اپنے آپ کو عادی ڈالیں. وہ میٹھی خوشبوئیں ہوتی ہیں، ان میں مزہ ہوتا ہے. پہلی دفعہ میں وہ اچھی نہیں لگیں گی آپ کو، لیکن پھر آپ کو ان کا چسکا لگ جائے گا، اتنی زبردست ہوتی ہیں. میں نے دیکھی گوروں کی خوشبو بھی سونگھی، عربوں کی بھی. عربوں کی خوشبو بڑی زبردست ہوتی ہے، لیکن پہلی نظر میں آپ کو اچھی نہیں لگے گی وہ، کیونکہ دیسی ہے. عود استعمال کیا کریں، عود، اوریجنل عود کہیں سے مل جائے. عود کی جو اچھا خوشبو میں ایک خاص بات یہ بھی ہوتی ہے، جو دیسی خوشبو ہے نا، دیسی خوشبو، دیسی کا مطلب یہ نہیں جو 5-5 روپے میں نیمبو کا نچوڑ کے اور اس میں چینی ملا کے بیچ رہے ہیں. وہ اوریجنل صحیح ہو، مشک ہے، عنبر ہے، عود ہے. یہ جو اوریجنل خوشبوئیں ہیں مہنگی ضرور ہوتی ہیں، تو تھوڑی لے لیں بھائی. تو یہ جو خوشبوئیں ہیں ان کا استعمال صحت کے لیے بھی مفید ہے. عود کا جو استعمال ہے نا، اس سے آپ کے دماغ کو تقویت ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اوریجنل عود جو ہے. اور یہ جو آپ پرفیوم استعمال کر رہے ہیں، یہ چھینکیں شروع ہو جائیں گی آپ کو. یقین نہ آئے تو آپ ایسا کریں کہ اپنی گھڑی جو ہے نا اس پہ اسپرے کیا کریں روزانہ الکوہل والا. آپ دیکھیں گھڑی کی چمک 3-4 دنوں میں یا 1 مہینے میں خراب ہو جائے گی، اس کی پالش اترنا شروع ہو جائے گی. اس کا مطلب اس میں وہ جو الکوہل ہے نا وہ اتنا خطرناک ہے کہ وہ لوہے کو خراب کر رہا ہے. تو جب آپ کے پھیپڑوں میں جائے گا تو پھیپڑوں کو خراب نہیں کرے گا وہ. کیوں بھائی، غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ آپ کے دماغ میں جب چڑھے گا تو دماغ کو خراب نہیں کرے گا وہ. اس لیے نان الکوہلک خوشبو استعمال کیا کریں. تو اوریجنل عود ہے وہ لے لیں، اوریجنل کہیں سے بھی نہیں ملتی آج کل، تو اوریجنل کے قریب بھی اگر ہو تو بھی چلے گا. مشک لے لیں. یہ چند ایک ہی خوشبو ہے. میں تو یہی استعمال، عود کے علاوہ اپن کو کوئی پسند ہی نہیں آتی ہے. مجھے جتنے لوگ خوشبو کا تحفہ لا کے دیتے ہیں میں وہ رکھتا ہوں سجا کے، جیسے ہی کوئی قریبی دوست ملتا ہے اس کو وہ گفٹ میں دے دیتا ہوں.
तोहफा कबूल करता हूँ मैं, और उनका उस हदिये को भी मैं अच्छी नज़र से देखता हूँ, लेकिन मैं इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल लगी बंदी खुशबुएं ही करनी चाहिए। सो दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मुस्ताफ़ साहब का मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा कि नमाज आपकी हो जाती है, अल्कोहल वाले परफ्यूम लगा सकते हैं आप, लेकिन दूसरा मसला ये है कि वो सेहत के लिए आपके नुकसानदेह हो सकता है, तो इसलिए इतर का इस्तेमाल ही करें, जो अरब में यूज़ किए जाते हैं उन इतर्स का इस्तेमाल किया जाए। सो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। कहाँ से कहाँ निकल गई। तो खून जिस तरीके से पाक है, पीना हराम है, बिल्कुल उसी तरह शराब पीना हराम है। अल्कोहल अगर जिस्म पर लगती है कभी सफाई करने के लिए, जख्म को पूछने के लिए, तो वो हम पी नहीं रहे होते, बल्कि वो लगाई जा रही होती है, तो उससे जिस्म या कपड़े नापाक नहीं होंगे और वो जायज होगा। लिहाजा इसी में ही इंप्लाइड है परफ्यूम का मसला भी, जो अब सारे मौलवी मान चुके हुए हैं, क्योंकि इनको बहुत देर के बाद समझ आई है। परफ्यूम में भी आप पी नहीं रहे होते सेंट को। मैं नहीं लगाता, मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इतर ही इस्तेमाल करता हूं, मैं को अपने लिए मामला सीधा नहीं कर रहा। परफ्यूम में भी अल्कोहल इस्तेमाल होती है, वो जिस्म पर या कपड़ों पर लगती है, तो वो पीता कोई नहीं है, लिहाजा उसका हुक्म वही खून वाला हुक्म है। ये जो बात लोग दलील देते हैं ना कि नहीं अल्कोहल उड़ जाती है, तो उसमें तो फिर आपको कोई अकली तौर पर ये भी कहता है कि शराब भी उड़ जाती है, ये पेशाब लगता है तो वो भी उड़ जाता है, एवेपोरेट हो जाता है, वो मामला डिफरेंट। हालांकि ये अकली दलील गलत है। तो असल दलील इसमें जो है वो यही है कि वो पीना हराम है, फी नफ्स ही वो नापाक नहीं, और जो शराब को नापाक कहा गया इस आयत के अंदर 90 नंबर में, वो रूहानी तौर पर नापाक उसको कहा गया। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। तो ये रूहानी तौर पर, वरना बुत को अगर हाथ लग जाए तो बुत नापाक कर देगा आपको, नहीं। इसमें बुत भी कहा गया कि बुत भी नापाक है, तो नापाकी से मुराद है रूहानी नापाकी। परफ्यूम के अंदर जो अल्कोहल इस्तेमाल की जाती है, क्या हम ऐसी परफ्यूम इस्तेमाल। सो दोस्तों, आपने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने कहा यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल परफ्यूम यूज़ कर सकते हैं अल्कोहल वाला, उसमें कोई मसला नहीं होता आपको, क्योंकि जो है ना वो पीना हराम है, उससे लगा ली जाए तो हराम नहीं। जैसे बुत हराम है, बुत नापाक है, अगर उसको हाथ लग जाए तो वो आप नापाक थोड़ी हो जाएंगे उसको हाथ लग जाने से। तो आपने मौक़िफ़ सुन लिया। उसके बाद चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शेख सोहेब मीर साहब, मोहम्मद मीर साहब, तो इनका मौक़िफ़ सुनते हैं क्या कहते हैं। कर सकते हैं, इसके बारे में पहले भी सवाल था और हमने वजाहत की थी कि हर वो चीज़ जो नशा आवर है उससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। और किस चीज़ में? जब उसे खाया जाए, इस्तेमाल किया जाए। परफ्यूम के अंदर अल्कोहल का इस्तेमाल, वो लोग जो ये काम करते हैं उनसे जब इस बारे में सवाल किया गया इसकी हकीकत को जानने के लिए, तो उनके जवाबात मुख्तलिफ हैं। हो सकता है किसी ने सही बात न बताई हो, या हो सकता है कि उसके तजुर्बे में ही यही आई हो कि अल्कोहल उतनी डाली जाती है जिससे उसकी क्वालिटी को महफूज किया जाए, और अगर उसको इस्तेमाल करें तो वो ख़त्म हो जाती है। हर दो सूरतों में अल्कोहल खुशबू में इस्तेमाल की गई, न उसको पिया जाता है और न ही उसको खाया जाता है। उलमा ने दीगर पहलुओं को देख के इस बात की इजाज़त दी है कि उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, शिद्दत का रवैया भी मौजूद है कि अगर वाक़तन कोहल उसमें शामिल है और कोहल असली उसमें मौजूद है तो उससे गुरेज करना चाहिए। सो दोस्तों, आपने मौक़िफ़ सुन लिया इनका भी, तो एडवोकेट फैसल साहब की तरफ चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने खुशबू के ताल्लुक से बात की है, एक परफ्यूम के ताल्लुक से बहुत काफ़ी गलत फहमी और कन्फ्यूजन्स हैं। अभी मेरे दोस्तों ने, मैंने अलग अलग मौलवी से, मस्जिद के इमाम से बात की, पूछा है इस मसले पर, तो सबके अलग अलग तरह से राय मशवरे आए हैं। कोई कहता है कि 2 घंटे के बाद में खुशबू उड़ जाती है, आप नमाज पढ़ सकते हैं। कोई कहता है खुशबू खत्म होने के बाद में आपको गुस्ल वाजिब हो जाता है। कुछ कहता है परफ्यूम लगाने से आपको गुस्ल करना पड़ेगा मर्दों को। और कुछ लोग कहते हैं कि मतलब अलग अलग तरह की राय मिलती है, तो एक राय हमें मुसलसल नहीं मिल रही है उस पर, तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। भाई ने एक सवाल किया परफ्यूम के ताल्लुक से, चूंकि परफ्यूम में अल्कोहल होता है। उनका सवाल ये था कि उन्होंने कई लोगों से सवाल किया, कुछ ने कहा कि वो परफ्यूम 2 घंटे में अल्कोहल उड़ जाता है, फिर परफ्यूम रहता है खाली, मतलब खुशबू रहती है तो नमाज में। कुछ ने कहा नहीं, वो नहीं उड़ता है, आपको गुस्ल करना पड़ेगा। कुछ ने कहा बिल्कुल गुस्ल वाजिब हो जाएगा, चूंकि आपने
शराब अपने जिस्म पर मार ली, इस मामले में क्या हमारी राय? तो देखिए इस मामले में जो सऊदी लजना का और दीगर उलमा के फतावे वो यही है कि जो शराब पी जाती है, जो शराब पी जाती है वो शराब जनरली परफ्यूम्स में डाली नहीं जाती है, ठीक है? जो शराब पी जाती है वो शराब जनरली परफ्यूम्स में नहीं डाली जाती। तो वो शराब जो परफ्यूम में डाली जाती है एक्चुअली वो केमिकल फॉर्म होता है उस शराब का, जिसको आइसोमर्स लिखते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें लिखा होता है आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोमेथिल अल्कोहल, आइसोइथिल अल्कोहल, मतलब परफ्यूम में जो होता है, ठीक है? तो उसके अंदर क्या करते हैं, केमिकली फॉर्म करते हैं उसको, अल्कोहल के फॉर्मूला जो होता है नेचुरल उसमें उसको केमिकली फॉर्म करते हैं, लेकिन ये ड्रिंकेबल फॉर्म नहीं है। मानो आपको ये आइसोमर्स अगर कोई पिएगा तो मर जाएगा वो, ये केमिकल है प्योरली, ये वो शराब नहीं जो नशा लाए, बल्कि ये शराब के मॉलिक्यूल से लेकर कॉपी किया हुआ है, केमिकल फॉर्म है उसका, जो कि ड्रिंकेबल नहीं होता, इसको पी नहीं सकते हैं। आप कभी नहीं सुनेंगे कि आइसोमर्स को भी लोग पीते हैं। शराब तो वही होती है जो सालों साल रखकर बनाई जाती है और रियल उसमें होती है, ये उसके आइसो मतलब उसका आइसोइथिल आइसो होता है, तो ये आइसोमर्स है। तो चूंकि ये शराब के हुक्म में दाखिल नहीं है, ये केमिकली समझिए बनाई गई, तो उन लोगों ने सऊदी लजना और दीगर बड़े जो है सऊदी के मशाइख उन्होंने ये फतवा दिया कि इसकी तिजारत भी हलाल है और इसका लगाना भी दुरुस्त है, इंशाल्लाह इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्चुअल अल्कोहल नहीं है, समझ रहे आप? ये आइसोमर्स है उसके, ये उस जैसा केमिकल बनाया गया है जो अल्कोहल जैसा, लेकिन एक्चुअल अल्कोहल नहीं, ड्रिंकेबल नहीं, इसको पी नहीं सकते आप, लिहाजा इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। याद रखिए, तो ये फतवा है। तो लिहाजा अगर आप परफ्यूम लगाते हैं इसमें अल्कोहल होता है, मर्दों के लिए बात कर रहा हूं, याद रखिए, औरतों के लिए परफ्यूम तो दुरुस्त नहीं, इसलिए कि फ्रेग्रेंस आता है इसमें, खुशबू उड़ती, महक दुरुस्त नहीं, तो लिहाजा इंशाल्लाह उसके लिए दुरुस्त है। लेकिन मैं कहूंगा सबसे बेहतर इतर है, आप अतर ले और अतर लगाए, सबसे बेहतरीन, सबसे नेचुरल, परफ्यूम का मसला नहीं, अल्कोहल का मसला नहीं, शक का मसला नहीं, पता नहीं ओरिजिनल डाल दिया डुप्लीकेट है, समझ रहे हैं? तो मसले में क्यों जाते हैं, सबसे बेहतर है। लेकिन फिर भी लोग सवाल करते हैं, परफ्यूमर से तिजारत करते हैं, तो अगर ये आइसोमर्स है तो जायज़ है इसकी तिजारत भी और साथ में इसका लगाना भी इंशाल्लाह अजीज जायज़ हो। सो दोस्तों, आपके सामने मौक़िफ़ पेश कर दिया सारे उलमा कराम का। तो सबने यही बताया कि सॉरी, ये थोड़ा सा गले में मसला हो रहा है। तो यही हमें पता चला है कि अल्कोहल वाले परफ्यूम आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपकी नमाज हो जाती है, लेकिन इतर यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमारी तरफ से भी, इस्लामिक प्रिस्क्रिप्शन की तरफ से भी 2 हमने परफ्यूम लॉन्च किए हुए हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसमें केमिकल इसमें 2 फॉर्म में आते हैं, एक T20 में आता है, तो वो ख़तरनाक है। आप ये पूछ लिया करें परफ्यूम लेने से पहले कि भाई T20 वाला तो नहीं है, T20 वाला जो है ना नुकसानदेह होता है, सेहत के लिए जो है ना नुकसानदेह होता है। एक दूसरा ऑयल दूसरा जो आता है वो थोड़ा सा मतलब नुकसान नहीं देता, वो अच्छी क्वालिटी का होता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक शेयर करें ताकि हक बात लोगों तक पहुँचे, आप भी इसके जारी में शामिल हो जाए। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। यहाँ पर दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। ए खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उसका तू, सबका तू हो रहनुमा।